So our today's guest is Akash Gupta. He is the founder of Synonym Solutions. So I'll not take that much time to introduce myself because that doesn't matter at all. There are a lot of important questions also we have to discuss. So I'll give a brief introduction of mine. I'm a founder at Synonym Solution and I'm also a founder of an online course by name Communication for Life. That is my mentorship program as well, in which I used to give training to my enrolled members. And before that, if I talk about my professional background, that I am a BTech mechanical engineer. I have completed my graduation in 2017. But apart from that, I have started my first venture in 2014 by name Synonym Solutions. But at that time, I was doing something different in that particular venture. And after that, after completing my graduation in 2017, after 6 or 7 months I have gone for a job, but I was not interested for a job, so I quitted my job after 6 or 7 months. And after that I came full time into the Synonym Solution, and that was, you can say that that was my second venture. So after 6 months of that, I started my second venture of Synonym Solution, in which we used to provide the life skill training to school and college going student. So that is a brief introduction of mine. That's great. So you experience a lot of things in your journey. Yeah, sure, you can say that. Great, great. So guys, today's our topic is first step towards success. So my first question to you, what is the definition of success according to you? What is your definition for success? First, I want to know that. Now According you to will say me, that you are interviewing me or I am interviewing you. But I also want to know your opinion, that what is your definition for success? okay. So according to me, definition of success is something which our goal in our mind, then we can able to achieve that goal after a longer period of time and after a full hard work, we can say. After some failures, after some success also, we can able to achieve that level of success which we want in our life. So this is Everything was perfect in your answer, but why you have said that after a longer period of time? Why can't we achieve in less period of time? Like everybody can do in a longer period of time. There are approximately lot of people who are running for their goal, who are running behind their vision. So why we are like already assuming that it will take a longer period of time? Like there are also a lot of techniques available nowadays, lots of trainings available nowadays, lots of content available nowadays. So now I don't believe in this factor that it will take a longer period of time. If you have the right mindset, if you have the learning attitude, then you should think that in a very less amount of time I have to achieve my goal. So I just want to correct it from a longer I period of time, from a very shorter period of time. I just wanted to say this thing because we have to be patient. Because if Yes. we don't take it from starting, then we can say if we can't able to achieve in a shorter period of time, then I can say we will regret to ourselves and we can't be able to achieve that success. So that's why I Okay. mentioned this thing. You are giving an exam of 100 marks, and if you are hoping for 50, that I have to cross the 50, then you will be able to come up, you will be able to fall at 60, you will be able to fall at 70, not more than that. But if you aim for 90, then there are more chances that you will fall at 80 or 85. Am I right or wrong? Yes, you are absolutely right in this. So why already pre-planned for the longer period of time? Just pre-planned for the shorter period of time, and at the same time be patient for that. Be patient for the results. Yes, you are absolutely right. So Yes. I think So you have given your definition of success in my definition too. no, like that is not the exactly definition for me to success. Like for me, the success is the actually the positive freedom in all the aspects of life. Like whether it is financial, whether it is spiritual, whether it is related to health, whether it is related to family, in whatever sector you are moving, there should be a freedom in your mind. Like if you are running, if you are running a family, then there should be a freedom. Like you should not having any stress that I have to feed my family, I have to go work just to feed my family. If you are thinking like that, that you are not having any freedom related to your family. Like suppose if your health is not good, then you are not having any freedom, because if your health is not good, no matter how much money you are having, you will not be able to enjoy that. So you should have freedom in every aspect of your life, whether it is financial, whether it is spiritual,
spiritual, whether it is related to health, whether it is related to family. When you have the day, when you have that freedom, then I can say that I am successful. If I am like stuck in anything, I'm stuck in my health, I'm stuck in my spiritual life, in my financial life, or in my family life, then I cannot say that I am successful. I should have freedom in all aspect of my life. Then that is the exact definition for me to become successful. Okay, so you are saying like freedom of everything in your life. If And you are free, one more totally thing, free, not just freedom, positive freedom. Like also we positive. can see that freedom to go in clubs, freedom to go club in parties. That is a negative freedom. That is a time waste. Like I am not saying that the negative freedom. I'm saying that the positive freedom that is uplifting me. Great. So that's the definition of you according to success. So Yes. I also agree with you that freedom in a positive way we can say that it is a success, because there are many people who are earning a lot of money, but they are not Right. financially, but they are not mindfully. I can say they are not in a positive. They are not taking freedom in a positive way. So Right. that's the thing I want. You are telling us. Yes. Yeah. Have you heard about Vijay Mallya? Have you heard about Vijay No, Mallya? no. No. Like okay, so you can go to the Google after this session and you can search about the Vijay Mallya. He's having a lot of money, but he's not having a freedom. So in some sense, if I talk about the money only, then Vijay Mallya is having a lot of money. He's a wealthy kind of person, but he's not having a freedom. So the people who think that money is everything, in their sense, Vijay Mallya is a very successful person. But for some people who thinks that money is also a part of success, and along with the money there are also lot of factors that we should count in the journey of our success, whether it is health, whether it is family, whether it is relation, whether it is our spiritual life. So that kind of in sense of that kind of people, Vijay Mallya is not a successful personality. So a person who have freedom in a positive freedom in all the aspect of life, then we can say that I can say that he is a successful person, he's enjoying his life. Yes, absolutely. One thing I wanted to add, like happiness is also a major factor in success. Right, and you are getting the happiness from the freedom. Now if you are healthy, you will be happy. If you are not struggling to feed your family, then my dear friend, you will be happy. If you are a spiritual kind of person, then your mindset will good. So if you are getting freedom in every aspect of your life, happiness will be there for sure, because you are not having any problem. Health, no problem related to health, no problem related to family. Suppose I'm not saying that you will not having any problems will be there in your life. You will get some health issues as well, you will get some problems in your family as well, but at that time you have all the solutions. If you are having all the solutions, if you are having all the resources to solve all those solutions, like suppose nowadays if a person have some problem in his or her family, but he is not able to solve that problem because he is not financially stable, he is not having that skill, by using those skills he is able to solve his family's problem. So that means he is not a successful personality. He needs some skills, he needs some money to solve his problem. So when the money comes, when the skills come, we will be able to grow in every aspect of our life. That's what I want to say. Yes, you are absolutely right, and you explained it really well. Thank you. So my second question to you is, it is our today's topic too. What is the first step towards success according to you? What is your first step? What was your first step to start your Instagram channel? According to me, it is initialization. Like It if we is can't able to initialization to start anything. initialization. Exactly. And what was the first step for because of that today we are connected with each other? What was the first step that was taken by you? Because of that step we are connected with each other. Mm, I remembered we would have a live session that day when you invited me on my live session. So it Okay. according to me, it was my first step towards success, because I can say like when you invited me, then I accepted that request from you, and then Okay. we can able to connect that.
So I And invited a today, lot of people. I used to invite a lot of people through my Instagram channel, and after your session, I'm again having a session at 8 p.m. I used to invite a lot of people through my Instagram on my Instagram for the live session, but not everyone accepts my invitation. What is the difference between those people and you? acceptance is also a major role, we can say, to achieve success, or we can say to for the first step towards success. Because if we can't able to accept anything which we want to initialize, then we can say that it is the first So the step towards answer, success. you already know the answers. Everybody already knows the answer. But what is the problem? That even after knowing each and everything, we are not ready to take actions. Like in the first step, you have explained that initialization. That means that taking initiative. And taking initiative is the only first step to become successful. If you are ready to take initiatives in your life, then you will be able to develop each and every skill. You will be able to become successful. My dear friend, understand one thing. A lot of people say that initiative are not that much important. A lot of things are also there which you need to learn. A lot of skills are required, finances are required, resources are required, like a lot of things are required to become successful. I agree a lot of things are required, but what is the first step? The first step is initiative. If a person is ready to take initiative that I have to learn, doesn't matter what is happening in my life, what is not happening in my life, I have to learn, then the person will go to learn the skills, and after learning those skills, now he can teach that skills to other person. He can generate some resources, he can generate some funds. If a person is not ready to take initiative to learn something, to teach something, to accept the invitation, like you accepted my invitation, but a lot of people are not accepting my invitation as well. So what is the difference? That you took an initiative to accept my invitation to join me in my live session. That was the initiative from your side. Now suppose that initiative was not taken by from your side, we will not have that conversation. आज हमारा ये कन्वर्सेशन नहीं हो रहा होता. You just took an initiative. अगर आप भी उस टाइम पे ये सोचते यार मैंने कभी लाइव सेशन नहीं किया, यार मैंने कभी इंटरेक्शन नहीं किया, हाउ विल आई डू दैट, हाउ विल आई मैनेज दैट. सो माय डियर फ्रेंड, आप शायद उस चीज को कभी कर ही नहीं पाते. आप हमेशा ये सोचते रहते कि पहले मुझे परफेक्ट बन जाता हूँ, पहले मैं 50-60 लाइव सेशंस देख लेता हूं, आफ्टर दैट आई विल जॉइन समवन्स लाइव सेशन, आफ्टर दैट आई विल एक्सेप्ट समवन्स लाइव सेशन. बट आपने इनिशिएटिव लिया, यू टुक द इनिशिएटिव, आपने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करा, और जो जो चीजें नहीं आती थी आपने फर्स्ट लाइव सेशन में देख लिया. नाउ द डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल इज दैट कि आपके साथ बहुत सारे लोग, आपके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 50 लाइव सेशंस का वेट कर रहे हैं सीखने के लिए, और आपने क्या करा, जस्ट एक लाइव सेशन में इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उसी से सारी चीजें सीख ली. अब किसकी जर्नी इजी हुई? आपकी जर्नी इजी हुई या उनकी जर्नी इजी हुई? Absolutely right. किसकी You जर्नी have to इजी? take initiative. ऑब्वियसली आपकी जर्नी इजी हुई ना, आपने एक चीज में सारी चीजों को सीख लिया. और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं 50 लाइव सेशंस देखने का. यार एक्सपीरियंस करो चीजों को, टेक इनिशिएटिव. जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं रास्ते में उनको ग्रैब करते जाओ, इनिशिएटिव्स लेते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ. परफेक्शन का वेट मत करो. जब तक परफेक्शन का वेट करते रहोगे अपनी लाइफ में बहुत सारा टाइम आप क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो. And now I'm not saying कि परफेक्ट नहीं होना है, परफेक्ट हो जाओगे. जब आप क्वांटिटी में किसी चीज को करोगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी. जैसे आज के टाइम पे, नहीं मैं एग्जांपल लेता हूँ छोटे बच्चे का. एक छोटा बच्चा होता है जो, उसको हम हैंड राइटिंग सिखाते हैं. तो अब हम जब उसको हैंड राइटिंग सिखाते हैं तो हम उसके क्या स्टार्टिंग में बोलते हैं कि तो एक परफेक्ट ए बना, परफेक्ट बी बना. नहीं हो पाता है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता है. बट जब वो रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहता है, ए बनाता रहता है, कोई 100 बार, 200 बार, 500 बार जब वो ए बना लेता है, नाउ ही बिकेम परफेक्ट इन दैट. अब वो ए बनाने में भी परफेक्ट हो जाता है. क्यों हुआ वो परफेक्ट? बिकॉज उसने क्वांटिटी में किसी चीज को करा तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ गई. सो अब आप है, आपने ये आपका, आई डोंट नो कि आपका कौन सा लाइव सेशन है, और आपने ये एके टॉक शो शुरू किया है, आपका ये फर्स्ट लाइव सेशन है. अब आप खुद इमेजिन करो कि आप इस सेशंस में करते चले जाओगे, तो क्या आपके अंदर परफेक्शन आएगी या नहीं आएगी? Absolutely. ऑब्वियसली आएगी. सो मेरा कंसर्न ये है कि परफेक्शन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी जब आप क्वांटिटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे. और क्वांटिटी की तरफ आप कब बढ़ोगे? जब आप इनिशिएटिव्स लोगे. until and unless you are not ready to take initiative, you will not be able to grow in life. So the answer that I want to give you is the initiative. You explained it really well, and I wanted to add one thing. Like बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो
बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, बट दे हैव अ स्टेज फियर and they have a camera fear. So this thing is also a drawback, we can say, in our first step. So you explained it really well, I wanted to say. Thank you so much. So my next question to you, what are the challenges you are facing in your journey of success? The challenges that I am facing and what I feel that a lot of people face when they go for their journey of success is the mental stress and distraction. These are the biggest challenges that I can share with you. The mental stress and the distraction. What I can feel like that whenever we start a journey, whenever we go to a journey, so the thing we expect from ourselves is much higher than reality. What we used to think like that, I will be able to record the video in first time. But when we usually go to record that video, generally it would not happen that we will be able to record the video in the first time. Generally it will take 4 or 5 or 6 times. So after 1 or 2 times, some people give up. Like, I expected that I will record my video in first time, but now this is not happening. I have tried for 1 time, I've tried for 2nd time, I've tried for 3rd time, but after 3rd time just people wanted to give up. Just people think like that, I am not for that, I cannot do that. So I just want to say that a lot of mental stress you will face. And after the mental stress is like sometimes you will face the challenges from your family, sometimes the financial issues will be there, sometimes your health is not good and you have to give a particular you have given a deadline by your client, so you have to complete a project on the deadline, but your health is not good. So at that time mental stresses come. So this is the biggest challenge that you will face in the journey of your success. If you are capable enough to handle the mental stresses that you are facing in the journey of your success, then my dear friend, you will be able to reach the heights. And I'll not say that you will not, like I'll not motivate you कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये कभी भी नहीं होने वाला है. बहुत सारे आप जब स्टार्ट करोगे तो 100% श्योर है बहुत सारी चीजें बुरी होंगी. कभी आपकी फैमिली भी आपके अगेंस्ट जाएगी, आपको फाइनेंशियल इश्यूज भी आएंगे, आपको रिसोर्सेज की कमी भी आएगी, आपके हेल्थ भी खराब होगी, जिसकी वजह से आप अपने क्लाइंट्स को, अपनी चीजों को टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे. सो उस टाइम पे जो आपके पास मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, दैट मैटर्स द मोस्ट. एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल. सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता है सारी चीजें अच्छे से चलती हैं, सारी चीजें स्मूथली चलती है. उनकी लाइफ में भी यही होता है, उनकी लाइफ में भी मेंटल स्ट्रेसेस आते हैं, बट दे हैव द कैपेबिलिटी टू हैंडल दैट मेंटल स्ट्रेस. दे हैव ऑल द नॉलेज टू हैंडल दैट मेंटल स्ट्रेस. नाउ द सिंपल ट्रिक टू हैंडल द मेंटल स्ट्रेस. आप अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? अक्षर, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? We will do some physical exercise or mental exercise, because physically and mentally we are connected. फिजिकल एक्सरसाइज हम ज्यादा करते हैं. अभी मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, अभी हम मेंटल लेवल पे नहीं जाते हैं. बॉडीली लेवल पे बात करूं तो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एंड अब बिफोर दैट हम कुछ फूड इनटेक करते हैं जिसकी वजह से मेरी बॉडी ठीक से काम करे, जिससे उसको ठीक से एनर्जी मिलती रहे, वो ठीक से काम करती रहे. अगर मैं ये फूड इनटेक बंद कर दूं अक्षत, तो आपको क्या लगता है कि मैं कितने दिन तक ऐसे बात कर पाऊंगा आपसे? For maximum I can say 1 week, not more than that. मैक्सिमम 1 वीक. सपोज कर लेते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे 15 दिन तक बात कर लूंगा. ठीक है, मैंने फूड का इंटेक बंद करा, मैं आपसे 15 दिन तक बात कर पाऊंगा. 15 दिन तक जो मेरी बॉडी में एनर्जी है उसको मैं यूज कर लूंगा. उसके बाद मैंने वाटर इंटेक भी बंद कर दिया, तो फिर मेरा और टाइम पीरियड कम हो जाएगा, मैं फिर आपसे दोबारा ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा. अब जो मेरी ये बॉडी है, इसको मैं अगर प्रॉपर चीजें नहीं दे रहा हूं तो ये भी अपना काम करना बंद कर देगी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. जस्ट लाइक माई माइंड, डियर माई माइंड, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉडी. अगर मैं इसको प्रॉपर फूड नहीं दे रहा हूं तो कैसे आप ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आप से कि आप अपने मेंटल स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे? मेंटल स्ट्रेस तो आना फॉर श्योर है, ये तो 100% है, आएगी. बट आप उसके लिए क्या प्री प्लान्ड है? आपने अपने माइंड को चीजें दे रखी हैं ऑलरेडी कि जब इस तरह की सिचुएशंस आएंगी तो मुझे उसको एक साथ कैसे फाइट करना है, कैसे लड़ना है. हम कभी भी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं उस चीज को. हम ना कभी मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे, हम ना कभी बुक्स पढ़ने के लिए बैठेंगे, हम ना कभी इंस्पिरेशनल वीडियोस को सुनने के लिए बैठेंगे, हम ना कभी ऐसे लोगों को सुनने के लिए बैठेंगे जो ऑलरेडी मेंटल स्ट्रेसेस को
फेस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। यार आप जो प्रॉब्लम फेस करने वाले हो ना, 100% इस दुनिया में ना वो प्रॉब्लम किसी ना किसी ने फेस करी हुई है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसने किसी ना किसी वीडियो, किसी ना किसी बुक में दिया हुआ है। बट आपको क्या करना है, जस्ट उस वीडियो को फाइंड आउट करना है, उस बुक को फाइंड आउट करना है, जिसकी हेल्प से आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओ। क्या फायदा है, मतलब आप उस प्रॉब्लम के साथ जी रहे हो, उस स्ट्रेस के साथ जी रहे हो, जब सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। बट द प्रॉब्लम इज अगेन दैट कि हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए भी इंस्पायर्ड नहीं है। हम लोग इतने इंस्पायर नहीं है कि हम लोग जाके बुक्स पढ़े, हम लोग जाके वीडियोस देखे, और फिर हम कहते हैं कि हमारी जो मेंटल स्ट्रेसेस है वो कम नहीं हो रही है। अरे कहां से होगी? जब आप बॉडी को खाना देना छोड़ दोगे तो बॉडी भी चलना बंद कर देगी, आप माइंड को खाना देना बंद कर दोगे तो माइंड भी चलना बंद कर देगा। मेंटल स्ट्रेसेस जो है बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, मेंटल स्ट्रेस। आप इसको फेस करोगे। एंड सेकंड क्या है, चलो मेंटल स्ट्रेस नहीं भी हुई, उस टाइम पे क्या होंगी, डिस्ट्रैक्शंस होंगी। डिस्ट्रैक्शंस लाइक आप ओशियन समझते हो ना, ओशियन, पानी। जहां आप अगर ओशियन के सेंटर में गिर जाओ तो चारों तरफ क्या दिखेगा, पानी 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 दिखेगा, आपको कोई सोर्स नहीं दिखेंगे। सो व्हाट आई फील लाइक दैट this world in which we are living is an ocean of distraction nowadays, not before. Nowadays this world is an ocean of distractions. In every second, at every moment, you will have a kind of distraction. Some distractions are in the digital form, or some distractions are in the physical form. Like the biggest distraction you can have in your hand is your mobile phone. It is productive as well, and it can be your biggest distraction as well. And your friends, the friends who are not helping you to grow in your life is also a kind of distraction. Your family members who also try to invoke you, who also try to poke you every time, is also a kind of distraction. So like we can imagine at every moment, in every step, we are having a kind of distraction. तो आप उन distraction से बच के कैसे अपने गोल की तरफ लेजर शार्प फोकस मेंटेन कर सकते हो। लेजर शार्प फोकस समझते हो ना, लेजर लाइट किसी एक पॉइंट पे मारते हैं तो उसी पॉइंट पे जाती है, डाइवर्ट नहीं होती, इधर नहीं जाती उधर नहीं जाती है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे जाती है। सो इस तरह का फोकस जब आप डेवलप कर पाओगे तो आप समझ लेना आप अपनी लाइफ में अचीव कर पाओगे सक्सेस। दो चीजों से आपको फाइट करना है, एक तो मेंटल स्ट्रेस एंड एक डिस्ट्रैक्शन। इन दो चीजों से बाहर निकल गए तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली स्मूथ होती चली जाएंगी। Great. According to you, mental stress and distractions are the most challenges, are the most important challenges that we have to face in Yes, our journey to success. biggest challenges. Okay, sure. So my next question to you, can you share your real life experience where you were thinking like you are achieving success, but at a particular point of time you will fail in it, and if you have a journey like this, then how you achieve, how you handle that failure in your life? Okay, I have a lot of failures, but I'll only share one. I have a lot of failures in my life, a lot of struggles I have faced, but I'll share only one that I like the most, जो मेरे को बहुत पसंद है, शेयर करना भी पसंद है, एंड मैंने उस चीज से सीखा भी बहुत कुछ है. So that's why I wanted to share that incident only, and you will find that incident of mine in some of my videos on YouTube as well. And the incident was in 2018. Me and my team have organized an Indian school meetup, an event by name Indian School Meetup, in which what we have planned for the 100 schools to come over there. So if we want that the 100 schools should be there, so we have to invite at least 500 schools. So what we done, we have make a plan to invite the 500 schools. We personally went, our team personally went to the 500 schools. We have invited to the respective members from the schools, and even we have taken their signature that they will come to our event, because the price that we were charging in for our event is zero. We were not charging a single penny from any particular person to come for the event. So we have went to the 500 schools of Delhi. We have taken their sign that they will be there for sure. But on the day of the event, we all were there, me and my team were there. The timing of the event, the starting time of the event was approximately 10 a.m. in the morning. So it was approximately 9:30 or 9:25 a.m. and some of the people were there, some of the teachers were there, approximately 10 or 15 teachers were there. And the time is increasing by 9:50. So I went to my partner and I said to him,
Like we were expecting approximately 100 or 150 people over there, but here are only 15 and 20 teachers. So now how can we make this event successful? और ये तो मतलब बहुत बड़ा एक फेलियर हो जाएगा हम लोगों के लिए कि हमने बहुत अच्छे से एक ऑडिटोरियम बुक करा है। ऑडिटोरियम को बुक करने के लिए हमने सिर्फ 1 लाख रुपीज का अपना अमाउंट दिया था। हमने स्पीकर्स बुलाए थे उस इवेंट में, 6 स्पीकर्स जो आए थे वो मुंबई से आए थे। मतलब उसमें एक साइंटिस्ट भी थे जो कि बहुत अच्छे, एक आईआईटी थे, पीएचडी थे, और मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। सो हमने इतने वेल नोन स्पीकर्स बुलाए हुए हैं, और हमारे परफॉर्मेंसेस भी हैं, हमारी मतलब बहुत चीजें हमने उस इवेंट के लिए प्लान करी है। सो जब स्पीकर्स आएंगे और वो देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 15 से 20 मेंबर बैठे हैं, तो हमारा क्या इम्पैक्ट होगा। सो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट एंड आई वॉज डिस्कसिंग विद माई पार्टनर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड माई पार्टनर वर ऑल्सो सेइंग दैट लाइक नॉट एन इशू। हमने ट्राई तो किया ना, हमने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद में जो भी होगा हम उसके लिए वो मतलब हम स्टक नहीं हो सकते, हमें इवेंट करना है, हम पूरा इवेंट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। सो लाइक अक्षत, यू विल नॉट इमेजिन कि हमने उन्हीं 15 और 20 टीचर्स के साथ में वो इवेंट किया। अब वो 15 और 20 टीचर्स के साथ में इवेंट करा, और उस इवेंट का मकसद क्या था? उस इवेंट का मकसद ये था कि हम 100 स्कूल्स को इनवाइट करेंगे और उनके सामने हम अपनी प्रेजेंटेशन रखेंगे। जब हम प्रेजेंटेशन रखेंगे तो हो सकता है कि 5 से 10 स्कूल हमारी सर्विस को पसंद करें और वो हमारी सर्विस को खरीद ले। अब आप सोच सकते हो कि जब वहाँ पे बैठे ही 5-6 स्कूल्स हैं और हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं 5-6 स्कूल के सामने, तो क्या लगता है आपको कितने स्कूल खरीदेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक स्कूल खरीद लेगा हमारी सर्विस को। अब जो हमने उसमें खर्चा किया, सारी चीजें करने के बाद में जब इवेंट खत्म हो गया, तो फिर लाइक आई वाज थिंकिंग कि मतलब व्हाट अ ब्लंडर इट वाज। कितना ब्लंडर था, मतलब कि हमने इतना कुछ प्लान किया, इतने स्पीकर्स आए, इतना सब कुछ था, तो मतलब ये हुआ क्या? और उसमें हमारा टोटल अप्रोक्सीमेटली 2 और 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट लग गया था, और हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट के ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं था, हम लोगों ने उतना ही कमाया था और वो सारा के सारा हमने अपने इवेंट में लगा दिया। बट उस इवेंट से अक्षत आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी सारी लर्निंग्स हमें मिली, इतनी सारी लर्निंग्स हमें मिली कि अब मैं आपको बताता हूँ 2018 में हमने अपना फर्स्ट इवेंट किया 2 लाख और 2.5 लाख रुपीस का लगा के, जहां पे हमारे कितने टीचर्स थे? 20 और 25। उस इवेंट से लर्निंग लेके हमने 2019 में दोबारा से एक इवेंट किया। अब जब हमने दोबारा इवेंट किया तो नाउ दिस टाइम वी हैव इन्वेस्टेड ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज। We have invested only 10,000 rupees, and the presence of the teacher were be more than 120। और जो टीचर्स इस बार आए थे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करके, वो कितने आए? 120 टीचर्स इस बार हमारे इवेंट में आए। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि उस एक इवेंट से मुझे कितनी लर्निंग्स मिली होंगी, कि मैंने कितनी कॉस्ट कटिंग करी। 2 लाख से पहले तो मेरा इवेंट आ गया कहाँ पे? 10,000 पे, और 20 to 25 टीचर से मेरा इवेंट कहाँ पहुंच गया? 100 to 125 पे। सो ये मेरी लाइफ का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर मैं अभी तक जिसको मानता हूँ, बट वो मेरा फेलियर नहीं था, वो मेरी एक बहुत बड़ी लर्निंग थी जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और अपनी लाइफ में उस इवेंट से मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करी हैं, और आगे भी मैं उस इवेंट से बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करता रहूंगा। Wow, that was a great story, and I can say that great experience you are sharing with us. हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो एक बार फेल होने के बाद दोबारा से स्टैंड आउट नहीं कर पाते। So that's the thing you shared कि आपको अगर कुछ नहीं मिला लाइफ में, मतलब उसमें आपको उस इंसिडेंट से कुछ नहीं मिला, बट आपको एक एक्सपीरियंस मिला जो आपने आगे अपनी लाइफ में यूज किया, एंड आप उसके थ्रू आप सक्सेसफुल होते गए। एग्जैक्टली, और यही होता है यार। आप कहीं भी करोगे ना, तो पहली बार आप, मेरे को लगता है कि पहली बार एक बार तो फेल हो गई होगे, तो उस फेलियर से आप सीख के जब आगे बढ़ोगे, तो मेरे को लगता है कि आप ज्यादा बेटर शायद कर पाओगे अपनी लाइफ में। Yes, absolutely. Because you have invested that time around 2 to 3 lakh rupees. But yes. In that case, you lost money also, you lost time also, and you didn't get any results from them. But you didn't demotivate yourself. You tried it, and you again you learned everything. And उसके बाद आपने एक मतलब बजट फ्रेंडली सेमिनार भी किया, उनमें क्वालिटी इंक्रीज हुई, एंड उसके बाद आपको रिजल्ट्स उससे ज्यादा अच्छे मिले। Yes, you are right, 100% right. Great. So I wanted to ask one question from this. What were when you failed that time? So what
what was what was the main thing that was inspired you at that time? Because हमें होता है ना स्टार्टिंग में, अगर हम फेल हो गए तो ये काम छोड़ दो बस, ये चीज होती है, तो उसको आपने कैसे फेस किया? ओके अच्छा, मैं आपके साथ ना एक छोटा सा इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगा उसी इवेंट से, जो कि उससे भी बड़ा ब्लंडर था इवेंट होने का। हमने एक मुंबई से स्पीकर को इनवाइट किया था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई से हमने जिन स्पीकर को इनवाइट करा था, सो हमारे पास बजट उतना ज्यादा नहीं था कि हम स्पीकर्स को उतना ज्यादा पे कर पाए। तो हमारी जो कंडीशन तय हुई थी स्पीकर के साथ, वो ये तय हुई थी कि हम उनको प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग्स देंगे अपने इवेंट की, जिसमें कि वो हमारे ऑडियंस के सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर वीडियो शूट होगा उनका, और वो वीडियो शूट उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो उसको अपने यूट्यूब चैनल या अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे यूज कर सकें। सो अब इवेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। आफ्टर 2 और 3 डेज मेरे पास स्पीकर का मैसेज आता है कि आकाश, जैसा हमारे साथ डिस्कशन हुआ था आपका और मेरा, कि आप हमें वीडियोस और फोटोग्राफ्स दोगे जिससे कि हम उनको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर पाए। सो नाउ अब होता गया है कि मैं फोटोग्राफर जो हमने बुक किया है अपने इवेंट के लिए, मैं उनके पास जाता हूँ कि आपके पास जो फोटोज है और जो वीडियोज है, अगर वो रेडी हैं तो वो आप मेरे को दे दो, मेरे को आगे को डिलीवर करने हैं। अब फोटोग्राफर मुझसे बोलता है कि हमारे पास जो कैमरा था उस टाइम पे वो प्रॉपर नहीं था और हमने ढंग से फोटोज क्लिक नहीं किए हैं। फोटोज तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 40-50 फोटोज हैं जो भी मतलब बेकार है, जिनको कहीं यूज नहीं किया जा सकता है, और वीडियोज तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं है। मतलब ऐसा हुआ है, वीडियोज रिकॉर्ड हुई हैं, बट उस टाइम पे जो हमने माइक कनेक्ट किया हुआ था अपने कैमरे से, उस माइक का वायर जो है वो आधा तो कैमरे में रह गया और आधा बाहर था। तो माइक में जो वीडियो है उसमें ऑडियो आया ही नहीं है, मतलब वीडियो है उसमें ऑडियो है ही नहीं। सो अब अक्षत, कैन यू इमेजिन कि उस टाइम पे मेरे सामने एक स्पीकर है जिसकी वैल्यू है 50,000 और 60,000, वो मेरे इवेंट में आ रहा है जस्ट ओनली 10,000 रुपीज में, और उसकी कंडीशन क्या है कि उसको सिर्फ वीडियो चाहिए। अब ऐसे टाइम पे मेरे सामने वो बंदा बोल रहा है मुझे कि मेरे को वीडियो दो, और मेरा फोटोग्राफर कह रहा है मेरे पास वीडियो तो है पर उसके अंदर ऑडियो नहीं है। तो अब मैं अपने उस बंदे को क्या जवाब दूं, उस स्पीकर को क्या जवाब दूं कि सर मेरे पास वीडियो तो है पर उसके अंदर आपकी ऑडियो नहीं है। तो वो भी पर्सन सोचेगा कि भाई मैं उसको कहाँ यूज करूं, मैं उसको किसी सोशल मीडिया हैंडल पे यूज ही नहीं कर सकता, ना मैं इंस्टाग्राम पे कहीं पे डालने का ही नहीं हूँ जब उसके अंदर ऑडियो ही नहीं आ रही, किसी को क्या समझ आने वाला है। सो ये अगेन एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। किसी भी स्पीकर को ना उनके फोटोज मिले और ना उनको वीडियोस मिले। सो उस टाइम पे अब आपका क्वेश्चन आता है कि मतलब ऐसी क्या चीज थी जो मुझे इंस्पायर करी थी। लाइक ना आई वाज एंजॉयिंग ईच एंड एवरीथिंग। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये हो रहा है, मतलब इतना सब कुछ करते हुए, इतने एफर्ट्स करते हुए, सब कुछ करते हुए भी मतलब ये ब्लंडर हो क्यों रहा है। इवन इतना बड़ा ब्लंडर कि मतलब इवन फोटोज तक नहीं आई। इतना भी नहीं हुआ कि मतलब फोटोज तो एटलीस्ट आती जिससे कि हम अपने फोटोज को शेयर कर पाते, नेक्स्ट टाइम इवेंट करते तो फिर हम किसी इन्वेस्टर के पास जाते, किसी को बोलते कि हमने वन टाइम इवेंट करा हुआ है, आप हमारे लिए स्पॉन्सर करें। मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों। तो एट दैट टाइम व्हाट आई वाज थिंकिंग, जो कि मुझे इंस्पायर कर रहा था कि लाइक समटाइम्स व्हाट हैपन। आपने स्टीव जॉब्स की वो वीडियो देखी है, कनेक्टिंग द डॉट्स, आपने वीडियो देखी है? I have seen, I think, but I didn't remember much. ओके सो आप जरूर देखना। तो वही वीडियो थी जो मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। स्टीव जॉब्स ने उस कनेक्टिंग द डॉट्स में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो पिछले जो डॉट्स है ना उनको जब आप कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हर चीज किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रही है। मतलब आप अभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं तो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके अपने लाइफ के बैक में जाइए, और बैक में जाने के बाद सोचिए कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ उसी की वजह से आज आप यहाँ पे हो। अगर आपकी लाइफ में शायद वो इंसिडेंट ना हुआ होता तो शायद आज आप यहाँ पे ना होते। तो मेरा हमेशा से एम क्या था कि आई हैव टू अचीव समथिंग बिग, आई हैव टू डू समथिंग बिग। मेरे को अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ मतलब अचीव करना है अपनी लाइफ में। और अभी तक मेरे सामने जितने भी लोग थे जो बड़ा कर रहे थे या जो अपनी लाइफ की जर्नी में, उनकी लाइफ में एक बड़ा ना बड़ा ब्लंडर हुआ जरूर हुआ होता है। तो मेरे को क्या चीज याद आ रही थी बार बार, यार शायद ये वही है जहां से मेरे को यू टर्न मिलने वाला है। और जब मैं फ्यूचर में जाऊंगा ना आगे, और जब मैं कनेक्टिंग द डॉट्स को करूंगा, मतलब जब मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा तो उस टाइम पे मैं रियलाइज करूंगा यार ये इवेंट ना बहुत ज्यादा मजेदार था, ये इवेंट होना ही था। और इसी इवेंट की वजह से आज मैं इस पॉइंट पे हूं। बिकॉज ये तो श्योर है एक दिन मैं हाइट को रीच करूंगा, क्योंकि वो मैंने ठानी हुई है। तो जब मैं उस हाइट को रीच कर लूंगा ना, उस टाइम पे मेरे को इस इवेंट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि इस इवेंट में जो फेलियर हुआ इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, जिस रीजन की वजह से आज मैं उस हाइट पे हूं। तो जब हम ये सोचने लग जाते हैं ना,
कनेक्टिंग द डॉट्स वाली एक्सरसाइज हमारे माइंड में रहती है कि जब आप प्रैक्टिकली सोच लो, जब भी आपकी लाइफ में कोई फेलियर आए तो जिस मोमेंट में आप हो ना, उस मोमेंट में अपने आप को रखो और सोचो कि पुराने जो फेलियर्स हुए थे, क्या उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया यहाँ तक पहुंचने में। जब आप ये सोचोगे ना तो आप आंसर पाओगे, यस हाँ हेल्प किया, जो मेरे फेलियर्स थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो ये जो फेलियर हुआ है, छोटे फेलियर्स थे, छोटी हाइट मिली है, बड़ा फेलियर हुआ, बड़ी हाइट मिलने वाली है, मतलब कि कुछ बड़ा मिलने वाला है। सो दैट वाज द थिंग दैट वाज इंस्पायरिंग मी एट दैट टाइम। यस, जो आपने ये इंसिडेंट शेयर किया, अगर आपका उस टाइम पे कोई व्यूअर होता, इट he or she was thinking कि it was the worst day for you, but according to you and according to me, it was the I can say a turning point for you. यस एग्जैक्टली, टर्निंग पॉइंट। और हमेशा क्या होता है ना, जब भी आपकी लाइफ में कोई बड़ा फेलियर आए ना, उसके लिए ना एक छोटा सा लाइक पार्टी कर लो। मतलब कि मान लो कि किसी भी एक फ्रेंड को, जो आपका पॉजिटिव फ्रेंड है, उसको जाके आपने एक पिज्जा खिला दिया, या फिर आपने अपने रूम में आए अपने थोड़ा सा डांस कर लिया, खुद ही अकेले से डांस कर लिया, कुछ भी कर लिया। मतलब जिस दिन भी आपको फेलियर हुआ ना, क्योंकि हर कोई याद रखता है कि उसकी लाइफ में कब बड़ी सक्सेस आई, बट ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब आपकी लाइफ में सबसे बड़ा फेलियर आया, बिकॉज वन डे यू विल रियलाइज कि आपके उस फेलियर की वजह से ना सबसे बड़ा चेंज आया था। तो जब आप छोटी सी पार्टी कर लोगे या डांस कर लोगे, तो वो डेट ना आपको हमेशा याद रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, कभी करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा। I will definitely do this because उस टाइम पे फेलियर के टाइम पे एक नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है, so if we do that party thing and positive thing, that वो न्यूट्रलाइज कर देती है। So Akash, I want to ask you last question, that Yeah, can sure. you give any suggestion to our audience that how they have to achieve their success and how they have to do in their journey so that they can able to easy up their path. So can you explain these things? Yeah, sure, I can explain. The best advice that I want to give to my audience, never ever afraid to make self investments for the self education. Like ये मैं अपनी लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक अपनी रियलाइज करता हूँ कि मैंने उस चीज को कभी नहीं किया, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस मैंने कभी रियलाइज नहीं की कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट की और सेल्फ एजुकेशन की क्या जरूरत है और वो किस तरीके से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। मैं हमेशा से सोचता रहा कि कॉलेज एजुकेशन इज इनफ, स्कूल एजुकेशन इज इनफ, और आफ्टर कंप्लीटिंग दैट आई रियलाइज दैट दे आर नॉट इनफ माय डियर फ्रेंड। हम यहाँ से सिर्फ उतना ही सीख रहे हैं जितना कि जाके हम एक 10, 15, 20, 25, 50 हजार तक की नौकरी कर पाए। बट अगर कुछ अचीव करना है, यू हैव टू डू। अगर आपको इतना ही करना है, दैट इट इज इनफ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्कूल्स में जाओ, अपने कॉलेज एजुकेशन लो, आप एक इंटरव्यू क्रैक करो, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इवन नॉट 50,000, आपको 1 लाख तक की भी जॉब मिल जाएगी, बहुत इजीली मिल जाएगी। आप थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते रहोगे 2-3 साल के अंदर अंदर आपका प्रमोशन होते होते आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक आराम से पहुंच जाओगे। सो दैट इज दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द कॉलेज एजुकेशन और द सेल्फ एजुकेशन। बट इफ यू हैव to build an empire, but if you have to achieve something big, if you have to fulfill all your dreams, and the first question that was what is the success for you, that I answered you that the freedom. If you want that freedom in your life, then you have to invest in yourself. Never afraid to make the self investments. आप इमेजिन करो कि आप अपने कॉलेज एजुकेशन के लिए, अपने स्कूल एजुकेशन के लिए कितना लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट कर देते हैं और कितना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। अप्रोक्सीमेटली ना लाइक मिनिमम से मिनिमम लेके चलूं मैं 5 से 6 लाख रुपए आप आराम से इन्वेस्ट करें, इवन ज्यादा। अगर किसी अच्छे कॉलेज में चले गए तो भैया वहां की तो फीस ही मतलब आपकी 1 साल की 2 लाख 3 लाख रुपए होगी अच्छे कॉलेज में, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप चले गए तो। बट अगर आप, मैं कह रहा हूँ कैसे भी, आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, तो भी आप ना 4 से 5 लाख रुपए अपनी पूरी जर्नी में इन्वेस्ट करोगे ही करोगे। और कितना टाइम पीरियड आप इन्वेस्ट करोगे? आप इन्वेस्ट करोगे अप्रोक्सीमेटली 12 साल का हमारा है, जो 12, 13, 14, 15 और 19, अप्रोक्सीमेटली 19 to 20 ईयर्स आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे। बट सोचो आज के टाइम पे सेल्फ एजुकेशन कितनी ज्यादा पावरफुल है। इवन जो कुछ बिग कंपनीज है, जस्ट लाइक IBM जैसी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज है, उन्होंने तो डिग्रीज
पे भी मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया है कि हम लोग डिग्रीज के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे। दे आर रेडी टू हायर यू बाय देयर नॉलेज, दे आर रेडी टू हायर यू बाय योर स्किल्स। जस्ट आपको स्किल्स चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए और दे आर रेडी टू हायर यू। जब आप सोचो कि बड़ी कंपनीज ऐसे इनिशिएटिव ले रही हैं, तो क्या आगे आने वाले टाइम पे हर कंपनी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेगी कि आपके पास अगर स्किल्स हैं जो उनको चाहिए। मान लो कि आपको किसी डिजाइनिंग में जाना है, अब डिजाइनिंग में जाने के लिए आपकी जो एजुकेशन है वो कहीं काम ही नहीं आ रही है, और आपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट किया था किसी डिजाइनिंग कोर्स के लिए, आप एक उस डिजाइनिंग से ज्यादा बेटर, आप उस डिजाइनर से ज्यादा बेटर डिजाइनिंग कर सकते हो जो कि 19 साल अपनी एजुकेशन में लगा के आया है और आपने 2 साल का एक डिजाइनिंग कोर्स किया है। सो दैट्स व्हाई अपनी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि आपको ये चीजें चाहिए ही चाहिए। एंड एट द सेकंड टाइम, एट द सेम टाइम आप अपने लिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी करते रहो, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होती है। अगर हम अपने मंथली खर्चे को, मंथली बजट में से 1000-2000 रुपया भी बचाते हैं और उसको एक साल में हमारे पास 1000 या 10,000 12,000 रुपीज होते हैं, उस 10,000 और 12,000 रुपीज को भी हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, माय डियर फ्रेंड, आई कैन अश्योर यू आप ऐसी हाई इनकम स्किल्स लर्न कर सकते हो जो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट इन फ्यूचर आपको पे कर सकती है। सो सेल्फ इन्वेस्टमेंट से कभी भी नहीं डरना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो मैं रिग्रेट करता हूं कि मैंने राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। सो यही लास्ट एडवाइस मैं अपने ऑडियंस को देना चाहता हूं कि ऑलवेज बी रेडी फॉर द सेल्फ इन्वेस्टमेंट्स। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड मैंने भी ये अपनी एक प्रीवियस पोस्ट में बताया था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक स्टेबल लाइफ जिए, आपको अप्स एंड डाउन्स ज्यादा ना मिले, सो यू कैन गो फॉर जॉब्स एंड आप एक अपना जो कॉलेज का काम है वही करते रहो, एंड उसके बाद आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी 50 to 1 लाख रुपीज अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो, एंड देन यू आर रेडी टू गो। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू वांट कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, बिकॉज वी हैव ओनली वन लाइफ, इफ यू वांट कि आप कुछ अच्छा अचीव करना है, आप दुनिया आपको याद रखे, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स। उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। एग्जैक्टली। सो सेल्फ इन्वेस्टमेंट से कभी डरना नहीं है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले कर दो, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा मान लो कि गलत चला भी गया, बाय चांस, मैं तो ये सोचता हूँ चलो गलत चला भी गया तो लाइक गलत जाएगा तो आपके पास स्टिल एक ऑप्शन है, आपके पास 2 वेज हैं। आपको पता लग जाएगा कि यार ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ये लाइन मेरे लिए है। और जब आप ऑप्शन ले ही नहीं रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो आप तो एक ही पोजीशन पे खड़े हो ना, आपके पास 2 रास्ते तो होने ही नहीं वाले हैं। जब आपने एक्शन ले लिया तो 2 रास्ते तो खुले ना, आप सक्सेसफुल हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते। बट जब आपने एक्शन लिया ही नहीं तो एक ही रास्ता ओपन है ना, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो इट्स बेटर कि एक्शन ले लो, क्या पता सक्सेसफुल हो जाओ, क्या पता वो चीजें आ जाए। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज टेक एक्शंस। यस, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, लाइक जो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, हम उसी से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। लाइक जो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था, फर्स्ट लाइव सेशन हुआ था, एंड जो अब लाइव सेशन हो रहा है, उनके बीच में जो टाइम पीरियड है, आई हैव नोटिस्ड मैनी पीपल्स, बहुत लोग हैं जो अपना इंस्टाग्राम या अपनी जर्नी छोड़ चुके हैं, एंड बहुत लोग हैं जो अपनी इंस्टाग्राम या अपनी न्यू जर्नी में वापस न्यू आए हैं। सो आई वांट टू से कि आप जैसे हमने बहुत जगह सुना होगा कि लाइक कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट इन दिस एंड यू आर लर्निंग एंड यू आर सेल्फ लर्निंग, then I can say that competition is here, because many people who are not I can say mentally fit, or who are not ready to take actions, they are leaving this thing, and if I want to say that कि अगर आप लोगों को सेल्फ इन्वेस्टमेंट करनी है एंड आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना है, तो आप लोगों के पास बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। आप बस अपना काम करते रहो, अपनी लर्निंग्स करो, उसको इम्प्लीमेंट करो एंड कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करो। आप लोगों को ये फील होगा कि कंपटीशन इज नथिंग। राइट, वेल एक्सप्लेन्ड। यस। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर मी? फॉर यू माई एडवाइस आई कैन से कि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में देखा था, यू आर न्यू एट इंस्टाग्राम, बट जैसे जैसे मैंने आपको देखा आप डेली लाइव सेशंस कर रहे हो, उसके साथ आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। सो इट इज द रियल लाइव एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल कि आपको टॉपिक इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन,
हाँ, ये बोल रहा था कि आपको मैंने देखा आप डेली लाइव सेशंस करते हो सैटरडे संडे को छोड़ के, एंड आप लोगों के पास ऑडियंस के पास एक लाइव एग्जांपल है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं तो आप क्या कुछ नहीं अचीव कर सकते लाइफ में। राइट। आई वांटेड टू से कि आप अपने लाइव सेशंस को कंटिन्यू रखें, चाहे आप जितने मर्जी बड़े हो जाए, बट क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंसेस जो दूसरे पर्सन के थ्रू आता है, लाइक मैं भी अभी फील कर पा रहा हूँ, इट इज माय फर्स्ट लाइव सेशन विद माय शो। सो जो एक्सपीरियंस, जो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स किसी और पर्सन के थ्रू आती है, वो हमारे ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। एंड जैसा कि मैंने अपने क्वेश्चन में शेयर करा था, मेंटल स्ट्रेस, ये Yes. भी एक तरीका है मेंटल स्ट्रेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने का। बिकॉज सपोज अक्षत आप सोचोगे आपकी लाइफ में भी कोई बड़ा ब्लंडर हो सकता है, कोई बड़ा फेलियर आ सकता है, तो उस टाइम पे आप क्या सोचोगे, यार मैंने एक बार सुना था अपने लाइव सेशन में आकाश ने मुझे ये बताया था। तो उस टाइम पे क्या पता आपको मेरी बात कोई याद आ जाए, आप अपने अपकमिंग लाइव सेशंस में कोई याद करो, वो करोगे, और उनकी लाइफ में भी कुछ ब्लंडर्स हुए होंगे, वो भी आपके साथ अपने ब्लंडर शेयर करेंगे, अपने फेलियर शेयर करेंगे। तो उस टाइम पे आप याद करोगे, यार मुझसे भी बड़े बड़े लोगों ने फेलियर्स फेस करे हुए हैं और प्रैक्टिकली मैंने सुना है अपने लाइफ में, तो ये मेरे साथ हो गया तो क्या हो गया, मेरे को बंदे ने बताया भी तो था, वो कैसे निकला था। सो आई हैव टू अप्लाई दिस ऑल्सो। मेरे को भी सोचना है कि कनेक्टिंग द डॉट्स काम कर रहा है, कनेक्टिंग द डॉट्स वाली एक्सरसाइज मेरे को अपने माइंड में लेके आनी है। सो यू विल बी एबल टू बाउंस बैक, यू विल बी एबल टू come across from your failures, and you will be able to learn from this. So that's why live sessions are like, I really love the live sessions, I really love to interact with people, I really love to share my experience, and I really love to gain their experiences as well. एंड अगर आपके पास मेरे लिए कुछ एडवाइस है, सो यू कैन शेयर। अक्षर, एडवाइस में ऑलरेडी आपको मतलब जो मैंने शेयर किया है, सारी की सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सारी की सारी एडवाइस आपके लिए है। एंड आई रियली लव अबाउट यूर कंसिस्टेंसी ऑल्सो, कि आप कंसिस्टेंटली लाइक करते जा रहे हो। इवन आप यू आर स्टडिंग इन द कॉलेज, और आप कॉलेज में पढ़ने के बाद इतना कंसिस्टेंटली किसी चैनल को मैनेज कर रहे हो, लाइक दिस इज रियली रियली वेरी अप्रिशिएबल। बहुत मजा आता है जब किसी इंसान को ऐसे देखते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को साथ साथ मेंटेन करते हुए और अपनी चीजों के लिए ग्रो कर रहा है। सो अक्षत, मैं भी आपको भी सिर्फ एक यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम हो, या अपनी पॉकेट मनी में से आप थोड़ा सा सेव करके, किसी को लगता है कि आपको ये कोर्स सीखने से आपकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो सकती है, आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहीं ऑफर हो रहा हो, कोई अच्छा ऐसा एक्सपर्ट हो जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखा रहा हो, बिकॉज आई फील लाइक दैट यू आर गोइंग इन द डिजिटल मार्केटिंग करियर, आप उस करियर में जा रहे हो, आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी करियर में आपको ग्रोथ दिलवा सकती है, तो आपको मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अक्षत, कभी भी उस चीज से डरना मत, कभी भी उस स्टेप को लेने से डरना मत, उस सेल्फ इन्वेस्टमेंट को कर देना। थोड़ा सा सोचना कि हाँ, ये पर्सन जो मेरे को सिखाने वाला है, जिसका भी मैं कोर्स या प्रोग्राम ज्वाइन करने लूं, क्या इसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग में कुछ अच्छा अचीव किया हुआ है क्या, उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स देखो, उसकी चीजों को देखो, वो कैसे करता है चीजों को। एंड देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार, मेरे पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरी फैमिली अभी इतना सपोर्ट कर देगी, बिकॉज अभी के टाइम पे ना बताऊं सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और सेकंड चीज, आपकी फैमिली भी अभी आपसे कोई अर्निंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रही है, एक्सपेक्ट नहीं कर रही है कि आप उनको कुछ कमा के लाके दोगे, बिकॉज यू आर स्टडिंग। सो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने 2 साल को, अपने जो भी बचे हुए साल उनको बहुत ही पॉजिटिवली और प्रोडक्टिवली यूज करने की, बिकॉज वंस यू केम आउट ऑफ योर कॉलेज, जब आप एक बार कॉलेज से बाहर आ जाओगे, तो देखो 2 चीजें होंगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होगी कुछ टाइम के लिए, बिकॉज वो थोड़ा टाइम लेगी, 3 से 4 साल आपको लगेंगे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आए, बट फैमिली एक्सपेक्टेशंस होंगी। अब आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी कि यार मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी फैमिली नहीं चाहती है मैं बिजनेस करूं, जॉब करूं। फैमिली क्यों चाहती है जॉब करो? फैमिली चाहती है कि आप एक स्टेबल लाइफ जियो, दैट्स व्हाई कि फैमिली आपकी चाह रही है कि आप एक जॉब करो। अगर आप उस टाइम पे स्टेबल होगे तो आपकी फैमिली कभी आपसे बोलेगी आप जॉब करो, बिकॉज उनको दिख रहा है यार मेरा बेटा जो है वो इस पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जहां पे लोगों को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, मेरे बेटे को सारी चीजें पता है और वो शेयर भी कर रहा है। सो यही एडवाइस है आपके लिए कि 2 साल के अंदर आपको जो भी टाइम पीरियड है, कभी भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट से मत डरो, जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, चीजों को 10x स्पीड से सीखो, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पे देखो ये चीज हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि कंपटीशन नहीं है, माय डियर फ्रेंड, कंपटीशन है, बट उस कंपटीशन हमारे लिए वो कंपटीशन ना बने, वो कैसे पॉसिबल होगा ये हमें ढूंढना है, और वो कैसे पॉसिबल
पॉसिबल होगा जब हम चीजों को 10x स्पीड से लर्न करते चले जाएंगे. द डे व्हेन वी स्टार्ट टू लर्न द थिंग्स, वी स्टार्ट टू ग्रैब द नॉलेज विद द स्पीड ऑफ 10x, उस दिन हम लोगों से बहुत तेज आगे भाग रहे हैं और उस टाइम पे कंपटीशन पीछे छूट चुका है और अब हम लोग मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं. बट वो चीजें कब होंगी? जब आप दूसरे लोगों को छोड़ के, यार कोई भी तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, सभी लोग नॉर्मल पोस्ट डाल रहे हैं, सभी लोग तो ये चीज डाल रहे हैं, सभी का चैनल भी तो ग्रो हो रहा है, तो मेरा भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा हो जाएगा. क्यों भाई, क्यों लगाना टाइम यार? जब कैपेबिलिटी है, फैमिली से मिल सकता है 2, 4, 5 हजार रुपया, लो ना, लगाओ 10,000 5,000 रुपए का कोर्स खरीदो, 10x से सीखो और 10x से आगे बढ़ो. दैट इज द ओनली एडवाइस दैट आई वांट टू गिव यू. यस एब्सोल्युटली. एंड मैं भी अभी भी मतलब आई एम गिविंग टाइम टू माय लर्निंग्स आल्सो. लाइक मैं 2 to 3 आवर्स हमेशा लगाता हूँ अपनी लर्निंग्स पे. बट आई वांट टू से कि अगर आप लोगों के पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आप लोगों के पास लगाने के लिए अभी इतने पैसे नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर फ्री कोर्सेज. लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, गूगल ने अपने बहुत सारे कोर्सेज दिया हुआ है. बट मेन थिंग इज यू हैव द डेडिकेशन टू डू वर्क एंड यू हैव द डेडिकेशन टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. राइट, एग्जैक्टली. आपने बहुत सही बोला कि अगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं है तो फ्री इज गुड. क्योंकि एक और चीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम है बहुत बनना, सो वो सारे लोग भी उस फ्री पे ऊपर वर्क कर रहे हैं, उस फ्री को देख रहे हैं, उस फ्री को पढ़ भी रहे हैं, उस फ्री को सुन भी रहे हैं, उस फ्री को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं. और आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो अभी इंस्टाग्राम पे, अगर आप इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाके डिजिटल लिखोगे ना, डिजिटल, लाइक आई कैन अश्योर आपको कम से कम 70 प्रोफाइल्स मिलेंगी. डिजिटल दिस, डिजिटल दिस, डिजिटल दिस, और वो तो डिजिटल नाम से मिल रही हैं. और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल चीजों को शेयर कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू, जिन्होंने अपने नाम के आगे डिजिटल नहीं लिखा हुआ है और फिर भी वो डिजिटल चीजें शेयर कर रहे हैं. एंड दे आर ऑल्सो वेरी कंसिस्टेंट. वो भी बहुत कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं. सो अब अगर आगे निकलना है, अब बात आती है कि आप कितना और किन चीजों को लर्न कर रहे हो. क्या आप भी उन्हीं फ्री चीजों पे जा रहे हो या आप कुछ पोटेंशियल सीखने की कोशिश कर रहे हो? जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा है, ठीक है, कोई भी एक बंदा है, उसको सपोज करो वो भी YouTube से सीख रहा है, और एक बंदा है जो एक ऐसे मेंटोर से सीख रहा है जो कि ऑलरेडी एक बिलियनियर ही है, ठीक है. अब एक बंदा जो फ्री में उस बिलियनियरी से काउंसलिंग ले रहा है, जिसकी फ्री YouTube पे वीडियोस अवेलेबल है, और एक बंदा उसी सेम बिलियनियरी से काउंसलिंग ले रहा है, बट कौन सी काउंसलिंग ले रहा है? पेड काउंसलिंग ले रहा है, पेड मेंटोरशिप ले रहा है. आपको क्या लगता है कि कौन से बंदे के पास कम टाइम में ज्यादा नॉलेज आएगी? एब्सोल्युटली जो पेड ऑप्शन की ओर ऑप्ट करेगा. बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, दोनों बंदे सेम टाइप का हार्ड वर्क कर रहे हैं, दोनों बंदे सेम टाइप की कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, दोनों बंदे सेम ही फील्ड में काम कर रहे हैं, बट ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी? ग्रोथ जिसके जो अगर सेम डेडिकेशन के साथ वर्क करे तो ऑब्वियसली पेड वाले की. ग्रोथ किसकी ज्यादा होगी? जो पेड पे काम कर रहा है, ऑब्वियसली उसी की ज्यादा होगी जो पेड पे काम कर रहा है. अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते ना कि यार मैं भी तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही. कह सकते हो आप इस पॉइंट को? नहीं कह सकते, क्योंकि भैया आप उस चीज के काम नहीं कर रहे जिस चीज पे वो बंदा काम कर रहा है. अगर आप, कोई एक बंदा है जो एक भाग रहा है, एक रेस में भाग रहा है, और मान लो कि वो सही डायरेक्शन में किसी स्पीड से भाग रहा है, और एक बंदा उससे डबल स्पीड से बैक साइड में भाग रहा है. अबे भाई तू डबल से भाग, चाहे ट्रिपल से भाग, चाहे मतलब मैं कह रहा हूँ 10x कर ले अपनी स्पीड, जीत ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ही सही नहीं पकड़ी है. अब वो बंदा क्या कहेगा, यार मैं तो 3 गुना ज्यादा स्पीड से भागा था, मैं तो 10 गुना ज्यादा स्पीड से भागा था. क्या फायदा? भागता रहे, जिंदगी में भागता रहे, कभी भी नहीं जीत पाएगा. सो यहाँ पे आपका कहना बिल्कुल सही है. अगर नहीं है तो फिर तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बची ना. अब तो कोई चॉइस ही नहीं बची फाइनेंशियली मैनेज करने की. तो जब आपके पास हो तब मैनेज करो, बट अगर है देन गो फॉर द पेड प्रोग्राम्स. यस एब्सोल्युटली. बट वो अगर हम निकाल सकते हैं, बिकॉज आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, हम इतनी पार्टीज एंजॉय करते हैं, हम इतने ड्रेसेस को परचेज करते हैं, उन पे भी तो हमें फाइनेंशियल वो मिलती है. That's what I want to say. So it was also a nice session for me, and you are a really very wonderful host. So keep going in your journey. I'll pray for you. I'll wish for you that कि आपके जो AK टॉक शो आपने जो आज शुरू करा है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जाए, और आप अगेन मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि मैं आपके शो पे दोबारा आके लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ, आपको इंस्पायर कर पाऊँ, आपसे इंस्पायर हो पाऊँ. So thank you so much for inviting me. It was really a very wonderful opportunity for me, and amazing. You are an amazing host. Thank you so much.
So from my side also, thank you so much. Thank you so much all the people who have joined me, who have joined Akshat, and for your humbleness, for your patience to listen to us, and for your kind words that you have shared with us. So thank you so much to all the members who are watching to us and will watch us.